दिव्य आनंदपुरी में हम लोग शारदीय नवरात्र व्यतीत कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी का और महालक्ष्मी जी का पूजन हुआ, पाठ हुआ, हवन हुआ, भोजन हुआ। अब उनकी कथा सुधा को हम कर्णपुटों से पी रहे हैं। बोले जगदम्बे मैया की प्रतिमा से दिव्य रूप से इसका भाषांतर कर रहे हैं। तो आइए इसमें प्रवेश करते हैं जी। So with immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our Guru, Shri Haira Khanwale Baba, today we are celebrating the second day of Sharadiya Navaratri in this beautiful Anandpuri Vishwa Mahadam. Since morning today, we have offered our prayers and we have done puja to Paramba Jagadamba. Then we did the part of Shaptasati, and then we did Havan in her honor. And now we are going to drink the nectar of Paramba Jagadamba's glory through our Karnapute. And today we did puja to Brahmacharini and also Mahalakshmi. तो परम्बा जगदम्बा का यह दिव्य स्वरूप जो आधे श्लोकों में उनके मुखार बिंद से विष्णु भगवान ने श्रवण की, उसी को 4 श्लोकों में विस्तार किया भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी को सुनाया। और ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को उसको सुनाया। नारद जी ने वेद व्यास जी को उसे सुनाया। और वेद व्यास जी का भाई इतने छोटे से काम नहीं चलेगा, इसका विस्तार कर। व्यास का अर्थ तो विस्तार, तो विस्तार करके जो है उसको 12 स्कंदों में 333 अध्यायों में और 18,000 श्लोकों में विस्तृत कर दिया। और उसको सबसे पहले कल प्रसंग आया सूत जी को सुनाया। सूत जी पुराणाचार्य, सारे पुराण उनको सिखाए और उनको जो है 4 वेद सिखाए। पैल है, जैमिनी है, व्यास, उनको जो है 4 ऋग्वेद, साम, अथर्व वेद सुनाए। इनको जो है पुराण, क्योंकि पुराण वेदों की व्याख्या है। पुरापि नवम पुराण, वेद में जो सूत्र रूप कहे गए हैं पुराणों में उनका विस्तार है। वहां सत्यम वद, अब सत्यम वद कहने से सत्य को कोई जल्दी सत्य नहीं बोलेगा, तो उसमें हरिश्चंद्र महाराज का आख्यान आ गया। तो इस प्रकार से फिर पुराण उसकी व्याख्या है। तो इस प्रकार इनमें पुराणों में उनका विस्तृत वर्णन हुआ है। तो उन्होंने फिर उसका विस्तार किया और 3 लोगों को इसको सुनाया। सबसे पहले अपने शिष्य सूत जी को, फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को, अंत में राजा जन्मेजय आगे वर्णन आएगा। परीक्षित के बेटे हैं राजा जन्मेजय, उनको विधिवत अपने मुखार बिंद से सुनाया। तो यहाँ कह रहे महाराज आपने हमको श्रवण करा दिया कि किस प्रकार सूत जी को उन्होंने सुनाया। और सूत जी ने नैमिषारण्य में 88,000 जो ऋषि मुनि आए थे, कल प्रसंग आया, तो उनको ये कथा सुनाई। क्रमशः 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, 18 उपपुराण है। हमने बताया था व्यास जी को 18 अंग बड़ा प्रिय है, तो 1 8 है, 9 होता है। और तुलसीदास जी को 9 अंक बड़ा होता है। नौमी पौम परमधु So yesterday we had heard how in the beginning Paramba Jagadamba gave the whole gist of this knowledge to Vishnuji, Vishnu Bhagavan, in just half a shloka. It was the condensed knowledge of this entire text. And then Vishnuji gave it to Brahmaji in 4 shlokas. And Brahmaji then gave this to his Manas Putra, Naradji. And Naradji then, in 4 shlokas, passed it on to Vedavyas, the creator of this and some of the greatest
spiritual literature. And then Naradji thought that, very condensed knowledge may not be understood by the people who are going to come later. So he expanded it. Vyas also means Vyapak, means expansion. So he expanded these 4 shlokas into a magnum opus of 18,000 shlokas, which were further divided in skandhas and chapters, etc. And then we have also heard that how Vyasji then taught the whole text to 3 people. One was his dear disciple, Sutji, about whom we heard yesterday, and then to his own son, Sukdevji, and later to Raja Janmedev. And yesterday we also heard how Sutji learned what we call Puran. Vedavyas is taught in Puran. And Puran is the explanation of the Vedas. Again, the Vedas can sometimes be dense, like Shastriji said, Dharmam Charam. And that becomes difficult for us, so he taught him the Purans, which are explanation of these texts. And Sutji then shared it with 88,000 saints. They were called Saunakadi Rishi. Saunak Rishi and his 88,000 followers, and we heard how this happened in Naimisharanya. Then we have to, now there were reference of 2 other people. One was his own son, Sukdevji, and Raja Janmedev. तो यहाँ सुखदेव चरित्र प्रारंभ होता है कि ये सुखदेव क्या है, भगवान शिव का जो ज्ञान विज्ञान है वो इनके पास। क्योंकि एक बार भगवान शिव जो कैलाश बिहारी है, जो कैलाश में विहार करते हैं, जहाँ कैवल्य थिरकता है उसका नाम कैलाश है। श्री कैलाश शिखर की शोभा देखती, यहाँ कुमाऊं का कैलाश है, वहाँ तिब्बत का कैलाश है। तो कैवल्य जहाँ थिरकता है उसका नाम कैलाश है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम पद। श्री राम विराजमान है। तो एक बार उन्होंने कहा पार्वती से, तो आप यही कैलाश में रहो, मैं कहीं भ्रमण करके जाता। यदि अक्षर शांति ले जाते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास के रूप में शांति जाते हैं। पर आज उनकी इच्छा हुई, आज उनकी इच्छा हुई कि आप यही कैलाश में रहो, मैं भ्रमण करके जाता हूँ। ठीक है, आपकी सहमति है, पति पत्नी ऐसी सहमति। तो कहीं भ्रमण को निकल गए। आज नारद जी को मौका मिल गया। उन्होंने कहा अभी पार्वती जी अकेली हैं, कुछ में अपने मन के गुब्बार जो है नारम ज्ञानम ददति नारद, जो ज्ञान देते हैं, नारम भक्तिम ददाति नारद, जो भक्ति देते हैं। और डोंगरी जी महाराज कहते हैं नारद, जिनकी बात को भगवान की रद्द नहीं करते, उनका नाम नारद है। तो उन्होंने वीणा उठाई, देवदत्त मिमाम वीणाम सर्वम विभूषिताम, नारायण निरंतर जप करते हैं। तो सीधे कैलाश पहुंच गए। वहां जो है माँ पार्वती विराजमान है और माँ को प्रणाम किया। आनंद ने को नारद कैसे पड़े, आनंद ने निरंतर ये वीणा वादन करता हूँ, ब्रह्मदत्त है, देवदत्त नाम का नाम ही देवदत्त है, भगवान ने दिए। माँ आप कैसे बोले, आनंद है, भगवान शिव का है। और उन्होंने तो बगल में अपने वाम भाग दाम भाग में अपनी शक्ति, उन्होंने तो आधे शरीर में बैठा दिया मेरे को। यशांगे विधा दर्शदा देवा बड़ा, इतना प्यार करने वाला कौन होगा जिसने अपने शरीर में मेरे को बैठा दिया। वो हो बड़ा नाच, बड़ा गर्व। तो माता जी एक बात पूछूं, बोले क्या है, क्या भगवान आपको सारी बातें बता देते हैं?
हाँ, क्यों नहीं भाई, अत्यंत प्रेम में कुछ भी छुपाया नहीं जाता है। तो ये बताओ, आपने कभी पूछा क्या ये मुंडमाल क्यों कहते हैं? ये भगवान सिंगर ये खोपड़ियों की माला है, क्यों पहनते हैं? अरे मेरा ध्यान तो इधर गया ही नहीं, क्या पहनते हैं, कैसे नहाने को धैर्य। बोले एक बात पूछिए। अगर उन्होंने बता दिया तो समझ लो बहुत प्यार करते, नहीं बताया तो दाल में काला है। ऐसा कहा और बीणा उठाई चल दी। बोले शंकर भगवान की। So today we are now talking about how this knowledge was also given to his son Sukdevi. So sometime in the long, long past, Lord Shiv and his consort, they lived, as you know, in Kailash. Kailash is the abode of the ultimate, and they lived together. In fact, more than anybody else, Lord Shiva's half of the body was, of his consort. And Lord Shiva, as you all have seen, wears something called a mundamal. That means a mala made of skeletons. Of the skull. Yeah, sorry. So one day, Lord Shiva tells his wife that, look, today I'm going out for some work. I'll be back by evening. Okay, perfect, happy, harmonious couple, no questions raised. So he goes away. And then Naradji, so Naradji is a symbol of bhakti, he is a symbol of also wisdom, and Shastriji said one other interpretation of his name, Na means no, and Rad means somebody who cannot reject his word. So even gods respect him, that what he says, they also accept that. So Naradji plays his veena, Devadatta veena, and he's continuously praying, he's continuously in meditation, playing his veena, and he moves around all over the place. And sometimes he also creates little differences. So he comes, he sees this as an opportunity to find Parvati ji alone. So when Shiva has gone out for some work, Naradji appears playing his veena, he touches mother's feet, and they ask each other, as is tradition, if everything is okay. And she says, yes, I'm fine. Oh, where is Lord Shiva? He says, oh, I think he's gone out for some work. Oh, I see. So he requests, Ma, can I ask you a question? Pucho, what is your question? Do you think that Lord Shiva really loves you? What kind of ridiculous question is that? Of course he loves me. So, Mother, one question, that do you know why Lord Shiva wears this mundamal, skull, this thing, mala? No, and neither did I have any curiosity around that. So, Naradji says, okay, he has not told you. Now when he comes back, please try to find out the mystery, secret behind this. If he tells you, that means he loves you. If he tries to evade the answer, that means there is something that you have to worry about. Now you put that kind of idea in somebody's head, and then that person keeps thinking. Like if you tell somebody, oh, you're not looking well today, are you okay? Then that person becomes conscious, and he or she will constantly think if everything is
in the evening, Shiv Bhagwan comes back to his abode, and as is the tradition, Parvati Ma, washes his feet and then, makes arrangement for his evening rituals, etc. And then when he has a moment to himself, without asking anything else, she asks that, Prabhuji, can I ask you a question? Shiva is a little sort of curious. Says, all these years you have lived with me, you have never asked me a question like that. Did Narada visit by any chance? Yeah, but my question is what I want answered. So she says that, can you tell me why you wear this skull mala garland? And then she says that, look, you can ask me any question, but that question please don't ask. तो भगवान शिव को जब आए तो उन्होंने सेवा की, मैंने आरती की, ताकि जैसा करते ही है कि नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, प्रभु एक प्रश्न है, तक इतने हजारों साल से सामने कोई प्रश्न, उनको क्या, नारद तो नहीं आया था। और तो क्या प्रश्न है? आप ये मुंडमाल को क्यों पहनते हैं हमेशा? उनको ये मत पूछो। जब कोई बच्चे से कहा जाए मत पूछो, कर नहीं, मैं जरूर पूछना, यहाँ मत देखो, जरूर देखते जाएगा, फिर वो जिज्ञासा और बढ़ जाती है। ऐसे भगवान भोलेनाथ आशुतोष और ढरदानी है, सुंदर मुंडमाल धारण करते हैं। गौरी गौरी संग जटा में विराजी गंग, अरे मुंड याद नहीं, बड़ा सुंदर एक भजन है, माई जी सुना देते हैं। गौरी संग जटा में विराज गंग, चंद्रमा ललाट शो है अधिक शोभाए, चंद्रमा ललाट शो है अधिक। ऐसा भगवान शिव का दिव्य एक गायक सुनाते हैं, उनको वहाँ हेड़ा देव सुनाते हैं, पुरानी बात। तो ऐसा भगवान का स्वरूप है। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत परम शांत। काम रिपु, काम माने इच्छाएं, वासनाएं सब भूल हो गई। एक बार आंख उघाड़ा तो काम जल गया। तब से उती शरण उघारा, चितवत काम भय जली। तो बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रहे। तो यही बताओ, तो भैया ये मत पूछो, सब विषय में पूछो। ये मुंडमाल जो मैं धारण करता हूँ, तो नहीं फिर तो हट है, नारी हट है, बाल हट, क्रिया हट, योग हट, ये 4 प्रकार के हट है। बच्चा मैया में तो चंद्र खिलौना ले, सूरदास ने वर्णन किया, तो जो चांद था ऊपर को, उसी को खिलौने के खेलने के लिए। अब मैया कहाँ से लाए, बड़ी देर हट करते। तेरे है गोद ने हो सरभी को न पान पैकरे हो, तेरी गोद न हो मैया में तो चंद्र सिरोना ले। तो बहुत देर तक जो है गुनगुनाते रहे भगवान के ना। अंत में माने क्या कि थाल में जल रख दिया सामने, और उसका प्रतिबिंब थाल उपलब्ध हो गई। तो आगे लगाओ हाथ। तो बाल हट और क्रिया हट, नारी हट कर लेगी, और योग हट, योगी अपने हट कर लेगा किसी काम के लिए, तो फिर वो पूरा। नारी हट, क्रिया हट, वो भी हट कर लेंगी, तो भाई घर का काम फिर बढ़िया नहीं चलेगा, इसलिए उसको पूरा करना पड़ेगा, कैसे भी करो। तो महाराज आप न भोजन बनेगा, न कुछ होगा, न कुछ होगा, मैं तो जो है कमाल हो गया है। आप इसको मेरे को बताइए, इतने छिपा रहे, इतने साथ, इतने समय से साथ रहते। तब जब बहुत हट कर दिया, तब उन्होंने कहा भगवान शिव ने, ये तो तेरी खोपड़ियां, मेरी खोपड़ी। हाँ, तुम बार बार जन्मती हो, शरीर छोड़ती हो, और बाद में शरीर छोड़ने पर सदा तुम्हें गले करना हो, तुम्हारी खोपड़ी को मैं गले से लगाता, इसलिए मुंडमाल पहने। तुम्हारा आप शरीर जो बोले, मैं चिन्मय तत्व जानता हूं, अमर कथा जानता हूं, मेरा शरीर चिन्मय है। मृत्यु महामृत्युंजय मेरा नाम है, मृत्यु का जो है यहाँ प्रवेश नहीं। तो क्या महाराज मैं नहीं सुन सकती अमर कथा, जिससे कि आपकी माला लंबी न हो जाए, ठीकी रहे तो घसीटते चले, तो मैं नहीं सुन सकती हूँ। पर उसके लिए बड़ा एकांत स्थान चाहिए, 12 साल का समय है, और उसमें सुनना नहीं पड़ेगा, अपलक उसको सुनना पड़ेगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो ये अमर कथा तुमको सुनाती हूँ। तो माता जी फिर तैयार हो जाती है, अमरनाथ जी। So, as we said that when
Lord Shiva returned after doing the rituals. It was already boiling in her, this question, the curiosity. And she asked that, can I ask you a question? And Shiva said, all these years you've lived with me, you've never asked me a question. Did Narad come? And of course, Narad had come. She said, but my question. So she asked, can you share with me why you wear this mundamal? And Lord Shiva first refused. Said, ask me any other question. And I'm happy to answer, but this one set aside. Don't go there. So then Parvati ji also now what we call hut. Hut means when you get rigid about something. You say my way or highway. That I do want the answer now. And there are different types of hut. One is Bal hut. Bal means a kid. When a kid says, I want a moon, that it's not practical, but he wants it. That's a Bal hut. In the same way, there is also hut of Nari. It's called Nari hut. And Nari hut is even more difficult because if she stops your household work, strike, then you don't get food, your house will not get serviced and so on, etc. So she said, don't. I want the answer, otherwise I am on strike. The household will stop functioning. So Nari hut is a very strong problem. So afterwards, first of course he didn't want to share, but later on Lord Shiva relented and he said, okay, I will tell you. These are all your own skulls from many, many lives, because I love you so much that every time you left your body, I kept your skull next to my heart. And these are all your skulls from many different lives. So she said that, how come you have lived through all this and I have died so many lives? She said that I have mastered the art of living, Chinmay, which doesn't get wasted. And he is also somebody who has Mrityunjay. He has found a victory over death, life and death. So he is Mrityunjay. These are his many different names. And he had also learned the science of living forever. Said, can I not also learn what you have learned and mastered? He said, yes, it is possible, but it's a very, very strong, difficult test. For 12 years, you have to continuously listen to this katha, Amar Katha. And during these 12 years, you cannot sleep even for a moment. If you sleep for a moment, the katha is off. It will be stopped. And it will happen in an enclosure where no other life form will exist, will be allowed to exist. So they agree and they go to Amarnath Gufa. जी अभी पूर्णिमा को पूरी हुई है, हर बार वहाँ छड़ी मुबारक चलती है, 1.5 महीना 1.5 महीना यात्रा चलती है। तो भाई ऐसा स्थान तो वहीं है, अमरनाथ गुफा। ठीक है प्रभु, चलिए मैं भी ये दिव्य भव्य नव्य कथा को श्रवण करूं और बात शरीर जन्म नाम मरना शब्द छूट जाए, आप भी करो निरंजन हो जाओ, माया रूपी अंजन से दूर हो जाओ, चिन्मय सन्मय आनंदमय हो जाओ, और नहीं चाहता है। तो जिज्ञासा जग गई, सच्ची जिज्ञासा होना कठिन है। तो चलो फिर वहाँ कैलाश से अमरनाथ गुफा, कश्मीर चले गए। तो गुफा प्रसिद्ध है अमरनाथ से, वहाँ शिवलिंग का अपने आप बर्फ का ही शिवलिंग बनता है, फिर भूल जाता है। तो वहाँ जाकर प्राण वायु का निरोध किया उन्होंने, है कि नहीं?
ऑक्सीजन का निरोध, तो जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो भी थे सब बाहर चले, शांत, कोई नहीं। इस कथा में तुम और हम रहे, और कोई। बड़ी दिव्य भव्य नव्य कथा है, कोई गोपनीय कथा है। तो प्राणवायु का निरोध किया और शिव सामने पार्वती जी बैठ गई और इधर शिव जो है हरि रामचरित सभाए पुलक प्रकट लोचन जल छाए। भक्ति का लक्षण है कि मम गुण गावत पुलक शरीरु गदगद गिरा नयन वह नीरू। ये भक्ति के लक्षण, लक्ष्मण को ही समझाया था। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन, ये भक्ति के लक्षण। मेरे गुण गाते शरीर पुलकित मान, वाणी अवरुद्ध हो जाए और नेत्र से नयन गंगा बने, ये मेरे लक्ष्मण को समझाए। तो ऐसी भगवान हरि रामचरित सब आए पुलक प्रकट लोचन जल छाए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोल शंकर भगवान की। तो महाराज कोई नहीं है, दोनों लोग हैं। तो उनके हृदय में अमर कथा, राम जी के भक्त हैं, राम जी शिव जी के भक्त हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जैसे ही है तो मगन एकदम मग्न हो गए, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्ण। यहाँ जैसे ही श्री रामभद्र आए ध्यान के रस में मग्न हो, मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 घड़ी में 48 मिनट, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है ज्योतिष शास्त्र में। तो 48 मिनट बिल्कुल कुछ नहीं बोले, फिर थोड़ी देर तक बोले, क्योंकि वक्ता के लक्षण अंदर भी डुबकी लगाता है, बाहर भी कुछ बोलना पड़ता है। आंखें बंद रही तो ध्यान हो जाएगा, एकदम आंखें उघाड़े रही अंदर का रस नहीं मिलेगा। तो मगन ध्यान दंड जुग पुनि मन बाहिर की, अंदर डूब रहा था मन ध्यान सिंधु में, तो जबरदस्ती बाहर निकला। तो रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्ण। सामने अब महाराज कथा कंटिन्यू चलती लगातार। और पार्वती जी जब दोनों लोग होते हैं तो हुंकारी भरते हैं। बच्चों में हम लोग भट्ट खाते थे, हुंकारी, अब तो खैर वो सब समय बदल गया। कोई कथा सुनाता था और भट्ट फूट के खा लिए और बीच में अगर मुड़ देते रह जा रहे नहीं, हाँ भाषा में हुंकार देते रह, मुड़ देते रह जा रहे तो मतलब चुप है। तो ऐसा चलता था। ऐसे पार्वती तो कोई 2-2.5 घंटे नहीं, 2-2.5 वर्ष के बाद माँ को नींद आ गई। ये कथा में नींद भी अच्छी आ गई। एक डॉक्टर ने कहा, भाई कहने वक्ता ने कहा कि कैसी कथा रही महाराज, बड़ी अच्छा है। जो कथा गोली खाने से इंजेक्शन नहीं, जो नींद जो है गोली खाने से इंजेक्शन लगानी होगी, आपकी कथा से आ गई तो बड़ी सुंदर कथा है कि कथा में नींद भी अच्छी आ गई। तो मातेश्वरी ने सो गई। अब वो एक अंडा बाहर आ गया था सुग्गा का, तोते का, उसमें अंडा था। जब उन्होंने बाहर किया तो फिर वो अपने बच्चे में आ गया। अब वो भी सुनने लगा कंटिन्यू। 2.5 साल बाद देखा कि माँ को नींद आ गई। तो उसने कहा अगर हुंकारी बंद हो जाएगी तो ये कथा भी बंद। तो उसी की पार्वती जी की शैली में माने जैसे वो रही थी, हुंकारी देने लगा। भगवान होते हैं बड़ी सुंदर कथा सुन ली। तो ऐसे होते होते 12 साल व्यतीत हो गई, पूरी कथा उसने श्रवण कर ली। तब जब भगवान शिव ने आंख खोला, देखा तो पार्वती जी निद्रा में, गहन निद्रा में है, पर हुंकारी कौन दे रहा था? देखा तो ये सुग्गा। बोले मेरी इच्छा के बिगड़ तूने कैसे कथा त्रिशूल लेके दौड़ के आगे आगे सुग्गा दौड़ता है, ये शिव जी शंकर भगवान जी पूछा था। So they decide that she will listen to this Amar Katha from Lord Shiv, so that she also becomes Chinmayi, whose body doesn't waste, who can live forever and be Shiva's consort forever. So they make the trip from Kailash Parvat, Kailash, which is the abode of Lord Shiva, all the way to Kashmir, where to this day there is this place called Amarnath Gufa. And there is a gufa which is like a cave, and Shiva
Shiva with his yogic powers, he nirodh means he stops all the life form, the air that keeps us, he just sucks it out with his yogic power. So once there is no more that life form alive, then everything which was there, little creatures which are there unseen to us, everything ceased. So now in that gufa, there are only two people. There are Lord Shiva and Parvati. And then he starts the katha. And he had told her that so that I know that you are awake, you have to do from time to time, so that I know you are awake and listening. So he started, and it went continuously. And Lord Shiva also, when you are in katha, you are half immersed in your inside, and little bit of your consciousness is outside. So you are somewhere between. So Lord Shiva started, and the katha went on for 2 years continuously, and Parvati Ma was listening. But after 2 years, as it happens often, that katha, when you listen, sometimes you just doze off. So Parvati Ma, after 2 years, dozed off. And unbeknownst, means without anybody's knowledge, there was an egg, inside the gufa, which, because it was inside its shell, it did not cease, it continued to live. And after 2 years, from the little egg, this little bird came out, and this bird could see that Ma Parvati has gone to sleep. So now this little bird started making the sound, which is like their typical sound. And Lord Shiva immersed half, inside, little bit outside. He thought that Parvati is awake and listening to this. And like this, 12 years passed. And Lord Shiva could hear somebody is saying, So he thought Ma Parvati is full attention. When after 12 years, the katha ended, and Lord Shiva came into his full consciousness, he saw Ma Parvati happily, in his sleep. Then who's doing this home? And then he found that there was a bird. And then Lord Shiva runs after the bird with his trishul, and this bird flies out. तो महाराज आगे आगे सुग्गा दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेकर के बिना मेरी आज्ञा से अमर कथा सुन लिया। तो दौड़ते दौड़ते यहाँ व्यास आश्रम बद्रीनाथ के पास में वहां पहुंच गए। उस समय व्यास जी की पत्नी का मुंह खुला था, सुग्गा सुख अंदर घुस गया और पीछे से बोले कहाँ गया व्यास जी का महाराज इतने बोले इसने अमर कथा सुन ली। अमर कथा सुन जाता तो त्रिशूल क्या करेगा? दैहिक दैविक भौतिक कुछ नहीं करेगा। अब आइए चरण में आपकी पूजा करता हूँ, उनका क्रोध शांत हो गया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाते। एक लोटा चढ़ा दो, बम बम कह दो, आगे नहीं। वेद को पात गाल बाल बजाए के बोल जो हर हर महादेव ढेर लगाए ते नहीं सहती भक्ति मुक्ति को खावे बड़ा भागी। तो शिव समान तो कोई देव है। ऐसे परम बात जगदम्बा माते श्री राजेश्वरी तो
शांत हो गया। अब शिव जी ने कहा मैं तो जाता हूँ भाई, लेकिन वहां पार्वती अभी सोई पड़ी है गुफा में, अनुराग गुफा में। मैं तो इसको पीछे दौड़ पड़ा था, अब तुम्हारे वहां बड़ा वेद वेदांत का ज्ञाता है, आजा हमारा दिव्य भव्य नव्य बेटा को आशीर्वाद देता है। तो फिर भगवान शिव तो चले कि पार्वती में सोई पड़ी है फिर से खुद को कथा सुना है। तो जीवन में आता है ना, बार बार सत्संग करना पड़ता है, एक ही बार से नहीं। कछुक काल कीजिए सत्संगा, बिने ही प्रिया भंगा। बार बार सत्संग करने से ये हमारा जो विकार है भवभंग हो जाता है। तो भगवान शिव को अब क्या ही प्रतीक्षा करने लगे। 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे होते होते जो है 12 साल काम में नहीं आ रहे। वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र वर्णन है 3 साल तो सब योग जातक ग्रंथ है, जातक पारिजात ग्रंथ है, उसमें सारे इन युगों का भी वर्णन है ज्योतिष शास्त्र। क्योंकि ज्योतिष वेद का जो है ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, नेत्र शिक्षा कल्प निरुक्त संग ज्योतिष व्याकरण, कोई 6 विद्याओं में जो निपुण होगा वो वेद समझ जाएगा, नहीं तो वेद को समझने की ताकत किसी भी नहीं है। ये वेदांत में शिक्षा कल्प निरुक्त संग ज्योतिष व्याकरण आदि आदि। तो इस प्रकार से अब जो है अब शिक्षा करने लगे। तो अंत में उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया, वेद व्यास है कि श्रीमन नारायण विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः, स्मरण करने से प्रकट हो जाता। क्या जी क्या बात है? बोले महाराज पता नहीं पत्नी की पेट में क्या घुस गया है, देवता जैसे किन्नर पेट पीछे से गंधर्व, आज बात होने को है वारी नहीं निकलता न। ठीक है मैं बात करता हूँ। भगवान विष्णु ने बात की, भैया तुम बाहर क्यों नहीं आते, क्या बात है? हमारा आपने विचित्र संसार मम माया दुरत्या, आपकी माया दुरत्य है। मैंने एक हमारे संदर्भ दुर्लत्या, दोनों ओर लात मारती थी, तो दुर्लत्य है और उसको पार करना बड़ा कठिन है ऐसी माया। तुम हमारा आपकी माया दुर्लत्य है, यहाँ भले में उल्टा लगता हूं मां के, पर मैं आपका जब निरंतर आपके नाम का हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि, जो प्रभु भजन हो रहा है तो जब कैसी भी हो आनंद आई। ओ वाह, ठीक है फिर मैं अपनी माया को रोक दूंगा, तुम बाहर आओ और मेरा ही भजन करो। उसी समय उन्होंने प्रसव वाले को जो प्रेरणा दी, भगवान शिव पुनः विष्णु तो चले गए और बाहर जैसे ही आए तो उनका डीलडोल बार साल था जैसे बाप जैसे बिल्कुल, और सीधे अभी नाल छेदन नहीं हुआ है, और सीधे भक्यम प्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम वैपायनु विरक्तावतरगास्भाव उतरी तन्मय दया सर्वो विनयु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमां। बोले सुखदेव जी भगवान की महाराज वो दौड़े पीछे से, जो है व्यास भी दौड़े, वे शुरू हो गई। आगे आगे सुखदेव जा रहे हैं, बेटा रुको रुको रुको। तो पेड़ जो है उत्तर दे रहे हैं, कौन किसका बेटा? अरे लोग हमको पत्थर मारते हैं, हम फल देते हैं। आपका बेटा निरंजन जी जन्मजात परमहंस, ये साक्षात शिव का ज्ञान है, इसलिए पूरी जो हमारी कथा सुनी है बादशाह। तो चलते चलते ऐसा पेड़ उपदेश देते हैं, आगे फिर बढ़ते जा रहे हैं। तो वहां अप्सराएं स्नान कर रही हैं तालाब में, तो न इधर देखते हैं उधर नाक्षिका प्रतिष्ठित है, इसलिए ध्यान में वसी करते हैं नाक्षिका से। यहाँ पर आ गया जैसे ओल्ड बाबा जी सराय से यहाँ आ गया चक्र। मन को एकाग्र करनी सबसे बड़ी कला है। अगर कोई आधे घंटा भी ऐसे बैठ जाए रातों काल तो मन आपकी पकड़ में आ जाए। मने मनुष्याणाम कारणम बंधु, ये बंधन का भी कारण है और मोक्ष का। मन जैसे चाबी जो है ताले को बंद भी कर देती है, मन एक मनुष्याणाम कारण। इस प्रकार से वो तो वैसे निकल गए और वो अप्सराएं वैसी नहाती रही, नहीं डर देख रहे हैं। बाद में विद्यार्थी आए तो इन्होंने एकदम से अपने कपड़े पहन लिए। ये हो गया मेरा जवान बेटा जिसका 1.5 का जैसा 16 साल का जैसा था, अभी गया है दिगंबर। बोले आपके मन में स्त्री पुरुष का भेद के मन में है न कोई, न स्त्री न पुरुष, राममय सब जग जानी कर प्रणाम योगी। आप धन्य हो व्यास जी, आपके घर में ऐसा पुत्र हो गया। तो फिर अनुकूल वेश में जो है क्या है, फिर वापस अपने आश्रम आ जाते हैं, फिर उनके पीछे नहीं गए।
happy rituals, etc. Just a little bit. So she, says, okay. So now Lord Vyasji requests Shiva, look, my wife has not been able to have a child for a long time. So Lord Shiva then blesses her that you will have a great son. He will be a scholar, renunciate, everything. And after blessing them, he goes. And after he goes away, this couple is waiting. 1, 2, 3, 4, like this. 12 years pass, and they are waiting for the child to come out, but the child is not coming out, and they don't know what to do. Now, so at this time, they both, husband and wife, they propitiate Lord Vishnu by his mantra, and eventually Lord Vishnu appeared. That will have a child of extraordinary brilliance, everything, but he has refused to come out of mother's womb. So we don't know what to do. So Lord Vishnu says, okay, let me talk to the child in the womb. So Lord Vishnu talks to the child in the womb, and he asks that why are you not coming out? And this child says that, look, the womb is not the kind of best place, that is there for me. But what is good is that I am not affected by the maya of the world. I am here, but all the time I am deeply engaged only in spiritual thinking. The maya of the world doesn't touch me. So Lord Vishnu says, look, I am blessing you that the worldly maya will not touch you, so please come out. So at that time, with his inspiration, Pivri, what you call the birth pain, and then after this, she delivers a baby. Now this baby, having spent such a long time in the womb, when he appears, on the earth, he already has a well-formed body, and he has long hair and everything, and of course he is Avadhut, he is already a realized soul, and without doing anything, without any ritual, he starts walking towards the forest. And Vedavyas by that time was an elderly person. He was not like a young father. He was a senior-aged father, because it had taken them a long time for the baby to happen. So he's running after his son. He wants to hold this son in his arms, and all the Vatsalya Prem, which is a prem, which is the love of parents for their young child. He has all of that expression he has had. They both have had desire for so long, they have waited for so long to hold this child close to their heart, love him, etc. But this child is not interested. He is just going to the one. And Vyasji is running after him, and he is walking, and his drishti, his vision is ekag. He is just looking straight, not left, not right. And two things happen. From behind, Vyasji is calling him. Shastriji read a very beautiful poem which expresses how his katar, that even his heart is sort of crying to hold his child, and he is calling out for his son, wait, and he is going straight. And when they pass through, there are trees, and the trees tell him that why are you running after
we also have our children, which are fruits. You know, we develop these fruits and people take them away. You know, they eat it, but we don't mind. You know, it is because it's Vishwa Kalyan Hetu, whatever, it's for the good of the humanity. So your son is a avadut of extraordinary power, erudition, everything. He is here not to be like a son, he is here to give his knowledge to the whole world. So don't run after him, let him go. But of course, Vyasji is not yet satisfied, he is still running. And while he is still running after his son, there is a place where young Apsaras are having a bath. And when Sukhdevji passes, the Apsaras are not disturbed. They continue to have their bath, enjoy, chat among themselves. And of course, Sukhdevji is not looking left, right, he hasn't even seen them. You know, he's going straight. And poor, old Vyasji, when he comes there, all these girls become conscious of his presence and they hide themselves, try to cover themselves. So Vyasji asks that my son is young, you know, and he is not even, you know, clad or anything. He is avadut, avastha. When he passed, you all were not at all sort of conscious of his going. And I am an old man with so much white hair and everything. When I am going, why are you all hiding yourself and become so conscious? So these Apsaras, they explain that, look, he does not have the distinction between man, woman, etc. He is beyond that. However, you still have that distinction in your mind. So that is why when he passed, we were not conscious. But when you are passing, because you have not lost that distinction between man, woman, etc., we have become conscious and that's how we are hiding. तो भैया इस रेस में तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो आ गए अपने आश्रम में और शिष्यों को जो भागवत रटाई थी का जब तुम संविधा लेने जाते समित ताणम चोत्रम परमनिष्ठम, हमारे पहले की परंपरा में भरे फल फूल मिठाई में लेकिन लकड़ी लेके जाओ, क्योंकि नृत्य हवन होता है, हवन के द्वारा सारे देवताओं की तृप्ति होती है। तुम स्वाहा तुम सदा तुनीव खटका स्वरात्मिका सुधात्म खेरे व्यक्ति तथात्मा अर्धमाता ज्ञानचार्य अवशेष विषाद देवताओं के लिए स्वाहा और पितृ के लिए स्वधा, इंद्र के लिए वखटका। तो विस्तृत व्याख्या इसकी सावित्री तुम देवी जननी बना क्या बात है। ऐसे ब्रह्मा जगदम्बा मातेश्वरी राधा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति महामाया के अनेकों नाम। तो देवताओं के लिए स्वाहा, जब तक आप मन के पास स्वाहा नहीं बोलेंगे उसको ग्रहण नहीं, स्वाहा उनकी पत्नी का नाम है और पितरों की पत्नी स्वधा है, इंद्र का बखटकार है। तो इसको क्या तुम स्वाहा तुम सदा तिम स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरे निर्ते माता अर्धमाता तिरानिता यानुचार्या विशेष तुम्हें संध्या ठापति। अद्भुत स्तुति दुर्गा सप्तशती की मार्कंडेय पुराण से ली है। सबसे छोटा पुराण है, 9000 श्लोक के बाद सबसे महत्वपूर्ण पुराण है। तो महाराज व्यास जी लौट आए आश्रम में, बोली से रेस में तो मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा, चलो फिर जो शिष्यों को भागवत रटाई थी उनसे कहा जब तुम संविधा लकड़ी लेने जाए, कोई फिल्म चलते ही नहीं थे, तो भागवत के श्लोकों को गाना। उनको लगा कि भाई मेरी बेटा आ जाओ, फिर कहने पर नहीं आया, कहीं भगवान की रूप माधुरी के श्लोक जो है उनको सुनाई पड़े तो क्या पता जाए। तो शिष्य लोग जा रहे हैं, लकड़ी बीन रहे हैं, फल फूल ला रहे हैं और भागवत के श्लोक गा रहे हैं। एक बार ऐसी जंगल में चले गए जहां एक छुटक शिला पर एक अवधूत बैठा है, यह 16 साल का, और उसका रंग भी कृष्ण की भगवान की तरह है कि नहीं, और बालों की लंगोटी बनी हुई और निर्विकल्प समाधि। उन्होंने श्लोक गाया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियु कर्णिकारम बिभ्रतपाठा कनक कशिवम वैजयंतीम च माला रंधान वेणुरुधर सुदया गंधारण्ये शपथरणम पाविशत गीत की
ये शब्द उनके कानून में गए सुखदेव जी तो उनका वो ऐसा सुंदर वाला बड़ा बिन मयूर पीछे लगा नटवर को नर्तक का जैसा भगवान शंकर नटराज है और कृष्ण क्या है नटवर नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्त कामा सनकादि सिद्धे तत् विमर्शे शिवसूत्र जाल बाल डमरू से जो है अयोन बिजली के पूरा व्याकरण शास्त्र पानी ने जो बनाया हुआ है कात्यायन उसमें जो है महाभाष्य है तो हमारे व्याकरण की जो ये पद्धति है भगवान शिव के डमरू से 14 सूत्र निकले तो नृत्यावसाने है नृत्य करते करते उन्होंने डमरू बजा दिया पानी की प्रसन्नता के लिए तब करने चले गए तब से सब कुछ हो जाए उद्धर्त कामासन का विमर्श शिव सूत्र जालम तो इसलिए भगवान शंकर की सुंदर शब्द निकले उसे व्याकरण शास्त्र में रचना हुई तो भगवान शिव का दिव्य ज्ञान भव्य ज्ञान तो उन्होंने कर्णियों कर्ण का कान तो है लेकिन एक चीज आभूषण पहने आजकल फैशन में भी आ गया विप्रदवाठा कनक कपिशम वैजंती तुम्हारा सुंदर पीले पीले कपड़े बने वैजंती माला बनी रंधावन वेणु रथर सुप्रिया पूरियम गोप वृंदे वंदारण्य चपधर्मणम प्राविशद गीत इसमें सिद्धार्थ राम की बड़ी भारी गई बहुत सुंदर तो उन्होंने एकदम आंखें खोलो आंखें खोली देता है इतना सुंदर मधुर दिव्य रूप है मेरे पकड़ में कहां से आएगा फिर आंखें बंद करें निर्विकल्प समाधि में चले गए शिष्यों ने घर आके इस आश्रम में आके प्यासी महाराज आज हम जब गा रहे थे श्लोक को एक अवधूत बैठा था यज्ञ अवस्था है बालों की लंगोट बनी है और निर्विकल्प समाधि में था लेकिन हमने जैसे श्लोक गाया ना एक बार आंखें खोल के ओ तुमने भगवान के प्रभाव का वर्णन किया था कल स्वभाव का वर्णन करना अरे कितने प्रभावी हैं प्रभावशाली है लेकिन स्वभाव कैसा उमा राम स्वभाव जे जाना ताहि भजन तज भाव ये उमा को उन्होंने भी दूसरे दिन अवो बकीयम तनकाल कोटारम उनके आगे श्लोक गया बकी जो है उतना स्तनों में जहर ले जाके गई उसको भी जो है माँ की गति दे दी कम्बा दयालु शरण प्रपत्ति ऐसे दयालु को छोड़ करके किसकी शरण में जाए अब सुखदेव जी रहा अरे रुको ब्रह्मचारी खड़े हो गए ये कहां से तुम श्लोक पढ़ रहे हो हमारे गुरु ने रचा है एक श्लोक नहीं है 12 स्कंद 18,000 क्या मेरे को भी पढ़ाएंगे तुम्हारे गुरु क्यों नहीं तो आनंद की वर्षा है उस वर्षा में भीग ले मन को भिगा ले मन को पवित्र कर ले आवाज में मुक्त कर ले ये तो दिव्य ज्ञान भव्य ज्ञान नव्य ज्ञान तो भाई उन ब्रह्मचारियों के पीछे सुखदेव जी महाराज आ गए ओहो ये तो मेरे पिता हैं उसको प्रणाम किया और पिता पुत्र का मिलन होता है बड़ा आनंद आ गया बेटा रुक जा करके नहीं रुका था और भागवत की माधुरी सुन करके आ गया है मिलन हुआ तब कहते हैं त्यागी पट पुत्र भागवतम मया निर्मितम पुरा बेटे ये भागवत शास्त्र भव माने भक्ति वो माने वैरागी और तो माने त्याग जिसमें भरा हुआ है भागवत तो आगे त्याग जिसमें भरा वैराग जिसमें भरा है और ज्ञान जिसमें भरा हुआ है ऐसा ये भागवत शास्त्र भागवतम रतमालयम मूल भोग रसिका भाव ऐसे भागवत तो फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है ना विधिवत पढ़ाई शुरू हो जाती है भागवत शास्त्र की पिता पुत्र का मिलन होता है So Vedavyas at one point realizes he's tried his best to get his son, so the newborn son who's running away to the forest, he realizes there is no point chasing him any further, so he lets him go, especially after hearing the advice from trees and other heavenly women who were there, to let him be. And he comes back. But, you know, in the old days, for a master like Vedavyas, he had many disciples whom he would teach his classics, etc. And these disciples had to do some seva in return. In those days was to go to the forest to bring havan,
Navida means the wood, etc. So every day these disciples would go and they would bring something. So that was their seva, that was their sort of payback. So Vedavyas taught them the riches from his text, and he said that when you go to the forest deep inside red wood, etc., sing these riches, which talk about the glory of the Lord Krishna. And every day, these young novitiates, when they went into the forest, they would sing while they did their work of cutting wood, etc. And one day, when they were in the deep forest, they saw one young novitiate sitting in motionless, meditation. He was in nirvikalpa samadhi, means he was not connected with the conscious world, he was deep inside. And once he heard the riches being sung, which were talking about the form of how Krishna, he looks, what kind of clothes he wears, all of that, then for a moment he got out of that subconscious inner self, he opened his eyes for a moment, he saw what was happening, it touched his inside core, and then he went back into his nirvikalpa samadhi. So all these young disciples, when they went back to Vyas, these Gopal ashram, he told them what happened during the day that they were going, and that during the day they saw one young novitiate who was sitting in samadhi. He only wore the clothes were his jata-jut, his long locks of hair, that's all that he wore. And that for a moment he opened his eyes when they were singing the richa. Then immediately he closed and so on. So that is. So Vyasji said that when you go next time, don't just, this time you sing the riches which talk about not just how he looked, etc., how rich his beauty was, but about what he was all about, what his thoughts, etc. were. So this time they went and they talked about the glory of the Lord, not just the form, but the glory. And when this young Avadhut Swami heard that, he came out of his, subconscious nirvikalpa samadhi. He woke up and he stopped the disciples. He said, come back. Who's, written these beautiful lines? And he said, this is our Guru, Vyasdev, who's written. And not just these few, he has written 18,000 shlokas. So he asked, will your Guru teach me also? Yes, you come. So now Sukadevji goes with these young disciples back to the Gufa. So, and he propitiates before his father and touches his feet. They now go into what we call alingan. They touch each other in love. So, what could not bring this son the riches of Ved, that he heard, brought him back. तो महाराज पिता पुत्र का मिलन होता है, दोनों को बड़ी खुशी होती है कि नहीं? उसके बाद पठ पुत्र भागवतम माया निर्विहितो, बेटे तुम इस भागवत शास्त्र को पढ़ाई शुरू हो जाती। कोई 6 महीना साल तक बहुत विधिवत पढ़ाई होने के बाद फिर पुत्र ने कहा तुमने मान फिर मैं अपने बन
बोले अब तुमने भागवत शास्त्र पढ़ लिया है, निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम, जिसका राग निवृत्त हो जाता है घर ही तपोवन हो जाता है। तुमने श्लोक गाया, बने भी दोषा प्रभंति रागिणा गृहे पंचेन्द्रिय निग्रह तप अकुत्सिते कर्मणि अप्रवृत्तिते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम। मन में भी बड़े बड़े दोष पैदा हो जाते हैं। राग अगर मन में है तो मन में अगर राग है, मन में भी जो है भले आसन बना लो पर राग द्वेष चलता रहेगा, बुरी बारी चलती रहेगी, बड़े बड़े आंखों में ऐसा हो जाता है। तो ये राग द्वेष निवृत्त नहीं है। तो बने की दोषा रागिणा गृहे में पंचेन्द्रिय निग्रह तप, घर में जिन्हें पांच इंद्रियों में निग्रह कर दिया है, निवृत्त रागस्य ग्रहण, जिसका राग द्वेष निवृत्त हो घर ही तपोवन हो जाता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। राग द्वेष को निकालने की जरूरत है, हमें घर से निकलने की जरूरत नहीं। किस घर से राग द्वेष निकलते हैं तो जहां रहेंगे आनंद है। तो बड़ा शास्त्रार्थ होता है पिता पुत्र के बीच में, और अंत में वो कहते हैं बेटा अगर तुमको जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो जनकपुरी जाओ, वहां मेरा शिष्य देवराज जनक राजर्षि जनक जो निरंतर ग्रह कार्य संसारिक कार्य करते हुए अपने मन को समाधि वो राजयोगी। तो अगर तुमको कुछ संशय है तो वहां चले जाओ, वहां जाने के बाद उनसे प्रश्न करो, वो तुम्हारा समाधान कर देंगे। कैसे घर में रह करके संसार में रह करके संसार से अलग पत्र विराम होता है गीता में। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है तो उसमें जल का स्पर्श नहीं होता है, ऐसे जीवन जिया जाता है। तुम जो है फिर जनकपुरी चली जाओ, तो फिर ऐसा कहा तो ये तो को प्रणाम करके सीधे उन पहले भी मार्ग था बद्रीनाथ यहाँ, और वहां से जनकपुरी रास्ता लग गए। अब वो जनकपुरी में जाते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, हम ये कथा कर सकते हैं, हम ये पूरा करते। So now Sukhdev ji has come back, father and son have at last met, and the son is desirous of learning what the father has created, and this process of exchange of knowledge, wisdom, of respect happens. And because the son is very medhavi, very brilliant in his intellect, he has learned in 1 year's time. And after he's learned, he tells his father that now I have learned what you have created, please allow me to go back to the Vana. So then, Vedavyas says, and as Shastriji explained, this thing that Vanepi dosha प्रभंति रागिणा pravanti ragina. गृहे पंचेन्द्रिय निग्रह तप। That means even when you are in the forest, away from everything, yet Maya can come there. And there are many interesting stories how one yogi goes there and he thinks, that he has only langot, but just to save his langot, he will bring something, and slowly, these are interesting sort of tales. Maya comes. Maya Mahathagini Amajani. So Maya can enter everywhere, including in the deep forest. You can be sitting there but thinking, what is happening to this, that and the other. He says that, going to the forest is not the ultimate thing. You can make even the home, when you give up Maya, home can be a very, very spiritual place. But Sukhdev ji somehow is not, he says, stay here, get married, have a family, and give up this worldly thing. You can make this into a Mahatapovan. But he is not convinced, he is not fully. So then, Vyasji says, okay, do one thing. I have a disciple. He is a king. But he is totally withdrawn from the world. His name is Raja Janak. So go to him and spend some time with him. Learn how he manages a big kingdom and yet is totally withdrawn from the world.
how he encounters Raja Janak, and Raja Janak gives him the wisdom of what we talked about, that it's not just by being in the one that you become, realize. You can be in a family and you can make that into a most sort of sacred place. बोले जगदम्बे मैया की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय माता भवानी जय दुर्गे
So what do we do? So what? Categorically she said. To learn more, how Chaitapurti is different from Brahmacharya, different It's available in text. So basically, in India, Shailaputri is a form of Mahakali. And one today, Brahmacharini is a form of Mahalakshmi. And the goddess which will be tomorrow, that will be the form of Saraswati, knowledge, etc. Mahalakshmi's form is for abundance. She gives you abundance in every form, not just your form. And Mahasaraswati is for knowledge, erudition, etc. So every first day is Mahakali, second day is Mahalakshmi, third day is Mahasaraswati. Then you repeat again. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9. But of course there are texts like this one where you hear in